मैं हूं इरफान शेख और आप देख रहे हैं जस्ट टॉक विद इरफान। आज हमारे साथ दो मशहूर गेस्ट है। वन अ वेरी सीनियर जर्नलिस्ट फ्रॉम लंदन, ताहा साहब, वेलकम टू आवर शो। एंड वी हैव अ वेरी सीनियर आईपीएस ऑफिसर फ्रॉम न्यू दिल्ली, मिस्टर परवेज हयात। बहुत बहुत स्वागत है परवेज साहब। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग इन दिस प्लेटफॉर्म। सबसे पहला सवाल परवेज साहब से। You have been a very senior IPS officer. You have been to various states. You have been in Delhi. You have been across the world. बहुत ही ब्रीफ में बताएं मूड ऑफ द नेशन क्या है। आज हम बात करें अगर किसानों की, बड़ा रिसेंटमेंट है, बहुत सारे किसान मारे जा चुके हैं। मैं फिगर कोट नहीं करूंगा क्योंकि एक भी है तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो हमारे अन्नदाता है। आप क्या कहेंगे कि इसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है लोगों में? परवेज साहब। Absolutely, it is a fairly serious issue, and the nation was not prepared, for this. And I believe in the concept of open governance partnership, which began in the year 2009 on the sidelines of United Nations General Assembly meeting, that large number of countries are joining, democracies largely, so that whenever you are making a rule for the particular community or the welfare of a particular community, so I feel that stakeholder should have been consulted. But now the bill has come out. At the same time, the farmers have come out on the road, that too in the chilling cold. So there is no way out, and there has been a loss of life. I don't think any government or anybody other, even God, at this stage cannot, that can be compensated. That is a colossal, irreparable loss. So the option today is that I respect the decision of the Honorable Supreme Court, that whatever protests you do within the precincts of the Constitution, the provision, the democracy or the freedom of speech we have. At the same time, we cannot put any citizen at the inconvenience, like like blockading the road and traffic, etc. That I don't support. Peaceful protest for the cause is good. So it's a very painful condition. Farmers are the most important part. Largely more than 50%, still more than 50% GDP comes from the agriculture sector. And India has been largely we have the agricultural based economy. So we have to respect, if the bigger evil is to use force and disperse them, that is a bigger evil we have to avoid. The lesser evil is that we withdraw. Definitely the talks are failing. There should be more and more effort to talk to the positive people. And we cannot afford longer to make the very poor farmers suffer further in the chilling cold. So government has to make more and more effort, consulted and concentrated. Fair enough, Parvez Hayat sahab. Taha sahab, what is your perspective? You're sitting miles and miles away from New Delhi, but I believe your heart lies here in India. You are very emotional about the human interest stories in India, and you are equally vocal about the good things that the Prime Minister is doing. Yes. How is your thought regarding this? What do you say? First, आपका क्या ओपिनियन है? दूसरा, इंटरनेशनली आप उसको कैसे देखते हैं? प्लीज गो अहेड। देखिए, पहली चीज मैं ये कहूंगा कि मैं आपकी ऑडियंस के लिए बात उर्दू हिंदी में करूंगा ताकि हमारी आवाज ज्यादा दूर तक पहुंच पाए, क्योंकि सब लोग हिंदी जानते। देखिए, सेंटिमेंट ये है कि आपने किसान के साथ छेड़ा है जो आपके पूरे वतन को खाना खिलाता है, आपके पूरे वतन को नहीं पूरी दुनिया को खाना खिलाता है। हिंदुस्तान का 70% जीडीपी जो है वो एग्रीकल्चर फार्मिंग से आती है। किसान जो हल जोतता है उससे वो खाना निकलता है जी। अगर आप कॉर्पोरेट को कह देंगे कि कॉर्पोरेट उस हल की प्राइस लगाएगा, तो फार्मर जो है वो अपनी जी जान से लड़ेगा अपने उस हल को बचाने के लिए। हमको पता है कि हिंदुस्तान के एक फार्मर को, किसान को एक ट्रैक्टर खरीदने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, किस किस मुसीबत से गुजरना पड़ता है जी। वो ऑलरेडी वहां के लैंडलॉर्ड के साथ लड़ रहा है जिसके फार्म उसको
रेंट पे दिए गए हैं हल जोतने के लिए, राइट उससे वो खाना अपने लिए भी प्रोड्यूस कर रहा है और अपने लिए भी प्रोड्यूस कर रहा है। राइट तो अब आपने उस सेंटिमेंट के साथ छेड़ा है जो सेंटिमेंट अपने पेट पे भी लात मार रहा है और आपके पेट पे भी लात मार रहा है। हिंदुस्तान सोने की चिड़िया थी, सोने की चिड़िया है, सोने की चिड़िया रहेगी, लेकिन बिल्कुल। आप चिड़िया को तो इंशाल्लाह। पहले बचाइए। आपने तो जी। चिड़िया को छेड़ दिया। हम कहते हैं कि आपकी चिड़िया अगर सोने का फल दे रही है या सोने का अंडा दे रही है, आप उसके सोने के अंडे को और बेहतर बनाइए। आपने तो चिड़िया को ही हलाल करने की तैयारी कर दी। अब तो ये तो मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है जो जी। अभी के हालात हैं किसानों के इंडिया जी में। जी अब आप कहेंगे इंटरनेशनली, मुझे नहीं पता अभी इंडियन मीडिया इंटरनेशनली क्या क्या दिखा रहा है, पर लंदन में, बर्मिंघम में, मैनचेस्टर में, एडिनबरा में, स्कॉटलैंड में, हर जगह प्रोटेस्ट हुआ है इन द फेवर ऑफ द किसान फार्मर ऑफ इंडिया। ओके। जस्टिन ट्रूडो ने आवाज उठाई, आपने उसको कह दिया है जी इंटरनल मैटर ऑफ इंडिया है। साहब इंटरनल मैटर ऑफ इंडिया है तो उसकी कैबिनेट के अंदर 34 मिनिस्टर बैठे हैं इंडियन ओरिजिन के पंजाबी, उनकी फैमिलीज डायरेक्टली इफेक्टेड हैं आपके इस डिसीजन से, तो वो कैसे इंटरनल मामला हो गया आपका? आपने 32 एमपी जो हैं यूके के, उन्होंने अपने फॉरेन सेक्रेटरी को लिखा है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो हैं वो डायरेक्टली इफेक्टेड है क्योंकि उनके रिश्तेदार जो हैं वो किसान है। आप किस बेसिस पे कह सकते हैं कि एक मल्टीनेशनल कंपनी आएगी और वो आपको ये बताएगी कि ये आलू आप 1 रुपए का बेचोगे या 1 पैसे का बेचोगे या 10 पैसे का बेचोगे? ये ताकत आपको किसने दी है? आपने आपने मुद्दा उठाया, आई अग्री विथ व्हाट यू आर सेइंग, बट इसमें एक चीज मैं परवेज हयात साहब से पूछना चाहूंगा कि ये जो पॉलिटिकल लोग हैं कनाडा में बैठे हुए जिन्होंने इन मुद्दों को उठाया और बातें की और उन्होंने एक तरीके से प्रोटेस्ट भी किया इस चीज पे, आपको क्या लगता है ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है बाय कनाडा, बाय द पॉलिटिकल लीडर्स इन कनाडा, या सही में वो लोग इन्वॉल्व हैं इस पूरे इशू को लेकर के? परवेज साहब, व्हाट इज योर ओपिनियन? देखिए, ये तो कहना बहुत मुश्किल है कि कनाडा से रिलेटेड है। ये तो जो भी है ये लोकल इश्यूज हैं, लेकिन चूंकि हमारे जैसे ताहा साहब ने बताया कि हिंदुस्तान के जो एग्रीकल्चर है और जो हमारा एक्सपोर्ट है और जो हमारी इकोनॉमी है वो लिंक्ड है, लेकिन ये लोकल इश्यूज है। बट जनरली होता है कि जब भी लोकल इश्यूज जो जेन्युइन इश्यूज है, इट इज अ वेरी जेन्युइन इश्यूज, सम vested interests for whatever reasons they try to exploit the situation. Maybe that people sitting in Canada, they may be doing politics that cannot be ruled out totally, but it is largely a grassroots issues. Why the farmers from Haryana and Punjab, they are on the road, and many other farmers are affected because the issue is that the government says कि उनके फायदे के लिए हमने किया है। सही बात है, गवर्नमेंट का इंटेंशन सही हो सकता है, लेकिन मुझको लगता है कि इसमें थोड़ा जल्दीबाजी हो गई, स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन नहीं हुआ। जो उनके बड़े पढ़े लिखे लोग, काफी फार्मर्स हैं जो बहुत एजुकेटेड हैं, बहुत समझदार हैं, नहीं, पिछले 3 दिन से लगातार एग्रीकल्चर मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, बाकी सारे लोग नेगोशिएशन पे बैठे हुए हैं, लेकिन ये पीछे हटने को तैयार नहीं। वो कहते हैं कंप्लीटली ये फार्म लॉस को आप स्क्रैप कर दीजिए, उसमें अमेंडमेंट की वो बात ही नहीं कर रहे। तो इतना रिजिडिटी क्यों है? अगर वो हल चाहते हैं तो बैठ के बात करें कि ये चेंजेस करो। अब मुझे ऐसा लगता है कि सरकार उस चीज के लिए बाध्य है, वो चेंज करेंगे। बिल्कुल, ये कहना कि साहब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। पूरे बिल को वापस लीजिए, मैं इससे एग्री नहीं करता हूं। बिल में मेजर अमेंडमेंट किया जा सकता है, जो उनको पहले ये पता है कि उसमें जो लोग हैं वो लोग आगे आए। जरूर इसमें कोई गुमराह कर रहा है, दैट अगेन दैट कैन नॉट बी रूल्ड आउट, या उनको समझ नहीं आ रहा। नहीं, ये तो कहना मुश्किल है। देखिए, ये कहना मुश्किल है जब ऑपोजिशन कर रहे हैं जी, ऑपोजिशन गुमराह कर रहे हैं, लेफ्ट पार्टी वाले कर रहे हैं, कांग्रेस कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं? अपोजिशन कोई जरूरी नहीं है, नॉट नेसेसरली कि पॉलिटिकल पार्टीज कर रही है। इसमें अपने किसान के अंदर जितनी है, उसमें भी कुछ ऐसे जमात है, कुछ ऐसे लोग हैं, ऐसे तबके हैं जो जिनका अलग थॉट्स है। सो उनका अपना एजेंडा हो सकता है, बट लार्जली आई फील कि बिल को इमीडिएटली विड्रॉ करने के लिए जो एडमेंट है उनका भी वो रुख सही नहीं है। मेजर चेंजेस होनी चाहिए, क्योंकि इसमें जो उनको शिकायत, जो मुझको समझ में आ रहा है एज ए जो भी मैं सिविल सर्वेंट या मैं जो फार्मर से और ज्यादातर बिहार कैडर का अफसर हूँ,
हमने उनके देखी, उसमें जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं वो इस बिल से अफेक्टेड हो रहे हैं। आप अच्छी बात है कि गवर्नमेंट को, हर स्टेट गवर्नमेंट में एक ऐसी एपेक्स बॉडी होनी चाहिए जो कि एमएसपी के अलावा अगर जो इनकी फसल है उसको और अच्छे दाम में, जिस तरह से पावर सेक्टर में होता है कि अगर किसी एक स्टेट में बहुत बारिश हो रही है और एक जगह बहुत ज्यादा गर्मी है, तो आप क्या करते हैं, हमारा स्टेट में वहां से पावर को जहां पे जरूरत है, जहां पे बारिश हो रही है, डेफिनेटली वहां पे पावर सरप्लस हो रहा है, वहां पे गर्मी नहीं है, इतना एसी का इस्तेमाल नहीं, तो उस पावर को हम लोग दूसरे स्टेट में जहाँ, उसी तरह से इसमें भी होना चाहिए कि हमारी जहां पे प्राइस है, अगर आलू की प्राइस यूपी में कम मिल रही है और ऐसा कोई स्टेट है महाराष्ट्र में या आउट ऑफ कंट्री है, नेबरिंग कंट्रीज में जहां उसकी डिमांड ज्यादा है, आप उसको उससे कनेक्ट कर दें। ऐसी एक एपेक्स बॉडी हर स्टेट में मार्केटिंग की इससे होनी चाहिए। आजकल टेक्नोलॉजी का इतना एडवांसमेंट, लेकिन दिक्कत इसमें आती है कि वो तो जो बड़े फार्मर्स हैं उनके लिए गवर्नमेंट कर सकती है और करने का इंटेंशन इसमें जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं तो उनके लिए भी एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए कि वो कहाँ जाएंगे, जिनके पास अगर 50 कुंटल और 100 कुंटल वाले लगे हैं वो तो बेचारे, उनको तो एग्रीकल्चर जो एपीएमसी है उसी मंडी में बेच सकते हैं, लेकिन वहां पे भी मिनिमम प्राइस जो है एमएसपी की बात कर रहे हैं उसमें मैं आई एम स्ट्रांगली इन कन्विक्शन की गवर्नमेंट तैयार है। तो एमएसपी अगर उसमें फिक्स की जाती है तो वो जो गरीब किसान हैं जिनको न तो वो जो बड़े बड़े लोग हैं रिलायंस फ्रेश और भी जो बिग कॉर्पोरेट प्लेयर्स हैं, तो डू यू थिंक दे विल go and buy from the small farmers or marginal farmer? They have a small tract of land, so they are getting left out. जो लार्ज फार्मर्स हैं उनको फर्क नहीं पड़ेगा, उनके लिए तो अच्छा है कि उनकी प्राइस अच्छे प्राइस पे बेच सकेंगे। व्हेन द गवर्नमेंट इज अश्योरिंग एमएसपी, तो डेफिनेटली अगर वो कॉर्पोरेट्स को दे आर डायरेक्टली सेलिंग टू द कॉर्पोरेट, तो वो उनको अच्छी प्राइस मिलेगी किसान को। लेकिन एट द सेम टाइम ये जो स्मॉल और मार्जिनल फार्म है इनके लिए एपीएमसी का जो प्लेटफॉर्म है कि वो करीब की मंडी में बेच सकें, वो बहुत ही जरूरी है। दैट इज माय व्यू। बट ओके ताहा साहब, अगर जो बात परवेज हयात साहब कह रहे थे, एक बहुत एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर हैं और काफी बड़े पदों पे रहे हैं और सारा सब कुछ देखते हैं, ये डिजास्टर मैनेजमेंट में भी बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है ही इज अ डॉक्टर ऑल्सो, ही हैज डन डिजास्टर मैनेजमेंट में, इन्होंने पीएचडी की है, बहुत बारीकी से चीजों को इन्होंने देखा है। मेरा आपसे सवाल ये है कि जो इनका एप्रीहेंशन है कि अगर इस फार्म लॉज को स्क्रैप किया जाता है, अगर गवर्नमेंट बैकफुट पे आती है, तो क्या गवर्नमेंट के ऊपर में ये भी प्रेशर पड़ सकता है कि वो सीए को भी उसको अमेंडमेंट करें, एनआरसी में भी कुछ चेंजेस करें, 3 तलाक में भी कुछ है, तो क्या एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगा अगर वो बैकफुट पे आते हैं? क्या ऐसा आपको लगता है? क्या इस डर से गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है? व्हाट इज योर परसेप्शन एज अ जर्नलिस्ट? देखिए, गवर्नमेंट ने अगर ये सारे जो लॉज इंप्लीमेंट किए हैं या लेके आए हैं, अगर इनकी कंसल्टेशन की होती, अगर आप स्टेक होल्डर्स के साथ बैठते और उनको बताते कि हम ये सब करने जा रहे हैं, आपको क्या लगता है, शुड वी डू इट और शुड वी नॉट डू इट, इफ वी आर डूइंग इट, ये सही है या गलत है, या इसमें आप कोई चेंजेस चाहेंगे, बातचीत कम्युनिकेट करेंगे, टू वे कम्युनिकेशन होगी, तो आप जो लॉ लेके आ रहे हैं उसको पब्लिक एक्सेप्ट करेगी, बिकॉज इट हैज बीन कंसल्टेड विद द पब्लिक। अभी आपने क्या किया, चाहे वो सीए था, चाहे वो आर्टिकल 370 था, चाहे वो किसान लॉ है, एमएसपी, आपने लाके थोप दिया। यू आर नॉट कंसल्टिंग विद द पब्लिक, आप उनको इन्फॉर्म कर रहे, आप उनको डिसीजन दे रहे हैं जी। एंड द पॉइंट इज, इफ आई एम गेटिंग इफेक्टेड, आई एम गोइंग टू रेज माय वॉइस, आई कांट सिट एट होम, राइट? In the case of Kisan, you have to feed the people. In the case of CAA, आपने देखा कि असम में लोग हैं जो पार्टीशन से पहले के वहां रहने वाले हैं, उनसे पेपर मांगे जा रहे हैं, उनको डिटेंशन सेंटर्स में डाला जा रहा है जी। ये कहाँ का इंसाफ, कहाँ की, किस दुनिया की किस कंट्री के अंदर आपने ऐसा होता देखा है पहले? और जिस कंट्री के अंदर होता देखा है उसका मैं नाम भी नहीं लेना चाहूंगा। आर यू तो कहने का ये मतलब रेफरिंग टू पाकिस्तान? नहीं, आप छोड़ दीजिए, मैं किसे रेफर कर रहा हूँ, मैं उसे रेफर कर रहा हूँ जो कंट्री 1942 में खत्म भी हो जाती शायद, अगर देखा जाता तो। ओके। लेकिन मेरा कहने का ये मतलब है कि आप जब तक अपनी पब्लिक के साथ, आप जब वोट मांगने जाते हैं तो आप क्यों पब्लिक के पास जाते हैं? फिर आप पब्लिक के पास वोट भी ना मांगने जाए, आप खुद ही डिसाइड कर ले हम इलेक्शन जीत गए। अगर आपने लॉ
अपने 564 या 573 एमपीज के साथ बैठ के आपने बनाना है पार्लियामेंट में, तो फिर आप पब्लिक के पास क्यों आते हैं? आप वोट मांगने क्यों आते हैं? आप वोट मांगने भी नहीं आए, आप वहां डिक्लेयर कर दें ये एमपी जीत गया, कैसे जीता वो हमने बताना है, हमने कहा ये जीत गया तो जीत गया। आपने यही किया ना, सीए के साथ आपने ये किया, किसान लॉ के साथ आपने ये किया, आपने 370-35 ए हटा दिया, आपने उसके ऊपर डिबेट कितनी की है? बाय लॉ अगर आप देखें, आज सुप्रीम कोर्ट आपका पिटीशन ही क्यों एंटरटेन कर रहा है? वो पिटीशन एंटरटेन नहीं होनी चाहिए। फिर तो आपकी वो पिटीशन एंटरटेन हो रही है, इसका मतलब आपने कोई गलती की है। तो पॉइंट है कि आप जो भी लॉ लेके आ रहे हैं उसमें आप पब्लिक को कंसल्ट क्यों नहीं करते? हु हैज गिवन यू द पावर टू डू इट? लेकिन ताहा साहब जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ताहा साहब जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, चाहे वो लोकसभा के हैं या राज्यसभा के हैं, वो तो इलेक्टेड लोग हैं, वो जो मूड ऑफ द पब्लिक है उसी को तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो तो उनकी बातों को, उनके वोट्स को, उनके मैथमेटिक्स को आप मान क्यों नहीं रहे? उनके मैथमेटिक्स को मैं इसलिए नहीं मान रहा क्योंकि अगर वो बात बिल्कुल करेक्ट है तो आज किसान सड़क पे क्यों खड़ा है? सीए का नाम खत्म हो गया या सीए की बात दब गई कोविड की वजह से। अगर कोविड ना आया होता तो सीए तो आज भी चल रहा होता, शाहीन बाग आज भी होता। लेकिन ये फार्मर्स प्रोटेस्ट में कोविड कहाँ चला गया? वो तो कोई मास्क भी नहीं पहन रहे हैं और पूरी भीड़ इकट्ठा है एक जगह। क्योंकि साहब सीए में आपके पेट पे असर नहीं हो रहा था, आपकी रोटी पे असर नहीं हो रहा था। आज आपके पेट पे, आपकी रोटी पे असर होगा। इसका जो कल इसका जो 6 महीने के बाद वो आएगा, रिजल्ट आएगा, वो ये आएगा कि आपका छोटा फार्मर जो है वो खत्म हो जाएगा। अभी जैसे परवेज साहब ने कहा कि जो छोटा फार्मर है 50 क्विंटल वाला, 100 क्विंटल वाला, उसको तो कोई पूछने भी नहीं जाएगा। क्योंकि अगर मैं एक किसान हूं और मुझे ये दिख रहा है कि अंडर प्रेशर मुझे 10 रुपए में अपना क्विंटल बेचना है जी, तो मैं तो भागूंगा बेचने के लिए। लेकिन छोटे फार्मर के पास तो इतना पैसा नहीं होगा कि वो मंडी तक अपना सामान पहुंचा पाए। क्योंकि छोटा फार्मर कैसे काम करता है? छोटा फार्मर ऐसे काम करता है कि एजेंट उसकी खेत पे जाता है, उसकी खेत पे जाके उसका सामान उठाता है, खरीदता है, ट्रक में लोड कराता है और वो मंडी पे जाता है। क्योंकि छोटे किसान के पास पैसा नहीं है ट्रक में अपना सामान लोड करा के मंडी तक पहुंचाना भी। तो आप ये सोचिए कि छोटा किसान जो है उसने अब ये देखा कि 6 महीने बाद तो इतने पैसे भी नहीं होंगे कि मैं अपने खाना खिला सकूंगा बच्चों को, बीवी को, खुद को। तो इसलिए वो सड़क पे उतर गया। उसने कहा कोविड गया भाड़ में इस टाइम पे, वी कैन नॉट थिंक ऑफ कोविड। राइट। परवेज भाई, परवेज साहब, आपसे मैं ये पूछना चाहूंगा, आप क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट को काफी बारीकी से आपने देखा है, किसी भी तरीके का जो फेमिन होता है या किसी तरीके से फूड क्राइसिस होता है, ये भी एक तरह का डिजास्टर ही है। हाउ डू यू सी इट? आपने जो बात कही उसको ताहा साहब ने दोहराया है, उसको बहुत ही इंपॉर्टेंस दिया उन्होंने, एंड यू राइट ऑन द डॉट कि छोटे फार्मर्स इससे परेशान होंगे। मेरा ये मानना है कि जो फार्मर्स होते हैं बाय एंड लार्ज ऑल ओवर द कंट्री पढ़े लिखे ज्यादा नहीं होते हैं। किस सीड को कैसे क्या करना है, फर्टिलाइजर क्या देना है, हाइब्रिड कैसे करना है, बड़े लेयर्स होते हैं, चीजों को कैसे बेचना है। आपको ऐसा नहीं लगता है कि जो यंग बॉयज एंड गर्ल्स हैं जो सिटी में परेशान है, कोरोना पेंडेमिक के बाद में जॉब्स नहीं है लोगों के पास, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये यंग बच्चे, यंग बॉयज एंड गर्ल्स गांव के तरफ ड्रिफ्ट करें और अपने ऐप से, अपने वेबसाइट से, अपने मोबाइल फोन से उस फार्मर्स के इशू को समझें और उस प्रोडक्ट को एक ज्यादा प्राइस में बेचे, चाहे उसको खरीदने रिलायंस आए, चाहे अडानी आए, चाहे अंबानी आए, चाहे कोई भी आए। मुझे ऐसा लगता है कि ये बच्चे अगर गांव में जाते हैं और एक कंसोर्टियम बनता है तो फार्मर्स को अच्छा प्राइस मिलेगा। व्हाट इज योर से? इज दिस पॉसिबल? कैन वी डू इट? इरफान साहब, गवर्नमेंट ऑफ में ऑलरेडी ये प्रोविजंस है, ऐसा नहीं है। आप यू आर सेइंग कि फूड प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन, एफपीओस बोलते हैं उसको, ऑलरेडी देयर आर ऑर्गेनाइजेशन, उसमें 500 के ग्रुप्स हैं और ऐसे बहुत से लोग हैं किसान के अंदर जो काफी जो एजुकेटेड लोग, तो जो एजुकेटेड लोग हैं जो स्मार्टफोन का इस्तेमाल भी करते हैं जी। तो इसलिए मैंने सजेस्ट किया था कि ऐसा एफर्ट हो भी रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट ऐसी बॉडी बनाए जिससे कि जो भी फार्मर्स हैं उनके प्रोड्यूस को कहाँ पे डायरेक्ट, अगर मान लीजिए कि कोई बड़ा किसान है या कुछ ऐसा किसान है जो जिसके पास सरप्लस है और ज्यादा प्रोडक्शन, प्रॉब्लम कब होता है? जब सरप्लस प्रोडक्शन हो जाता है तो बहुत कम दाम पे। आपने देखा होगा कि लखनऊ में गवर्नर हाउस के या सीएम हाउस के सामने आलू फेंके जा रहे हैं, तो वो कैसे होगा? ऐसे बहुत से कंट्रीज हैं, नेबरिंग कंट्रीज, जहाँ पे उसमें उनको आलू को बहुत अच्छे दाम पे मिल सकता है, तो वो कनेक्ट कर दे उनको
उनकी चीजें बेच दी जाए। जैसे ताहा साहब ने कहा कि ठीक है छोटी, जो इसी तरह से जो ये जरूरी है कि हाँ हमारे जो पढ़े लिखे यूथ हैं जो सो कॉल्ड एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, तो उनको भी इंकरेजमेंट है कि वो डेफिनेटली वो बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। और अभी जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट में हम काफी पीछे चल रहे हैं, ऑल्दो इट्स पेंडेमिक का इज ए ग्लोबल इम्पैक्ट है। पेंडेमिक के बारे में हम नहीं जाएंगे, दैट इज अ लॉन्ग डिबेट। पेंडेमिक में इंडिया इज स्टिल डूइंग बेटर बिकॉज वी हैव दी, हमारा जो फर्टिलिटी रेट है दैट इज, और जो हमारा रिकवरी रेट है वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग है, और हमारी इम्यूनिटी सिस्टम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से अच्छी है, और हमारी एक यंग पॉपुलेशन, जो मीडियन एज हमारी कंट्री की 29 ईयर्स है, vis-a-vis द यूरोप दे हैव 42 तो एडवांटेज है। लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशंस है, बहुत से प्लेयर्स आ गए। आपको मालूम होगा कि इसमें जो है बहुत से प्राइवेट प्लेयर्स काम कर रहे हैं टेक्नोलॉजी, जिससे कि उनके पास वेदर स्टेशन 2-2 किलोमीटर, 1-1 किलोमीटर पे भी लगाया जा रहा है, और वो बता देते हैं कि साहब बारिश होने वाली है। अगर 3 दिन पहले पता चल जाए कि बारिश आने वाली है, तो एक छोटा किसान जो बिजली, जो कि इरिगेशन के लिए खरीद रहा है पावर, वो 3 दिन रुक जाएगा, उसको पता हो जाएगा कि बारिश है। अभी वो सब कॉन्शियसनेस हो चुकी है। फार्मर्स, एफपीओज बहुत एक्टिव हैं। एफपीओज में जो एजुकेटेड किसान हैं, जिनको बहुत खबर है, जरूरत इस बात की है कि हाउ टू एड्रेस दी जो इश्यूज ऑफ दी स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, उनकी जो चीजें हैं वो कैसे बेचेंगे, उनके पास तो इतने रिसोर्सेज नहीं है। इस बिल में उसको एड्रेस करने की जरूरत है, उसकी जरूरत है। और बिल्कुल एडमेंट अगर गवर्नमेंट रहती है या वो रहते हैं, तो ये दोनों के लिए अच्छा नहीं है। इट इज नाइदर इज गुड इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन और फॉर द गवर्नमेंट, फॉर द सर्वाइवल, फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, फॉर द इमेज ऑफ द गवर्नमेंट, एंड आल्सो फॉर, अगर गवर्नमेंट को ये सोचना है कि इस बिल में हम वापस ले लेते हैं तो सीए पे इफेक्ट होगा, ऐसा नहीं है। तो स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन इसमें नहीं हुआ है। अगर आप कहते हैं कि हम आपके फायदे के लिए कर रहे हैं, तो उनके फायदे के लिए आप कर रहे हैं, तो उनसे बुला करके बातचीत होनी चाहिए। ये जरूर है कि उसमें अगर उनकी भी पूरी बात सही नहीं, अगर उनकी पूरी बात सही होती तो पूरे हिंदुस्तान इतना बड़ा मुल्क है, बाकी फार्मर्स क्यों नहीं आ रहे हैं? तो इसमें जरूर कुछ लोकल लेवल पे पॉलिटिक्स है, लेकिन जरूरत, ये कमी है, इस कमी को दूर करने के लिए गवर्नमेंट को इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री उनको आगे आना चाहिए, और आउट ऑफ द वे जाना चाहिए। गवर्नमेंट को जितनी भी हो सकती है उनसे जुड़ना चाहिए, ताकि इसको सॉल्व कर सकें और उनके इश्यूज को एड्रेस करें कि हम कैसे मार्जिनल फार्मर, दूसरे जो फार्मर्स हैं उनको और स्मॉलर फार्मर्स के इंटरेस्ट को हम कैसे गार्ड सकें। और जो एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस वो मांग रहे हैं, वो तो गवर्नमेंट हैज टू देयर इज नो शॉर्टकट, दे हैव टू एड्रेस दैट इशू, एमएसपी। ओके परवेज भाई, agreed. ताहा साहब, finally to wrap up the whole conversation, आपसे, क्योंकि परवेज भाई ने कोरोना पेंडेमिक की बात कही, उन्होंने कहा कि ये बड़ा एक इशू है, अगर उस पे जाएंगे तो बड़ा लंबा चलेगा। तो just one brief from you, what is the present situation there in London, in United Kingdom? क्या माहौल है पेंडेमिक को लेकर के? पेंडेमिक को लेके जैसे कि मैंने कहा, लास्ट 24 घंटे में जो खबर आई है वो काफी मतलब खौफनाक किस्म की खबर है, क्योंकि जो नया स्ट्रेन है वो 70% मोर कंटेजियस है। उसका ये मतलब है कि जितने लोग अभी पिछले 2 हफ्ते में 3 हफ्ते में बाहर निकले थे, उसमें बहुत बड़ा चांस है कि वो ऑलरेडी इस वायरस को कंटेन करते हैं। जो रेट ऑफ इन्फेक्शन है वो ऑलरेडी 1 से ऊपर चला गया है। उसका मतलब है कि देयर आर मोर देन 100 पीपल इन्फेक्टेड इन 100,000 सैंपल जो ये लेके चल रहे हैं यहाँ पे। तो अभी पूरा साउथ ईस्ट ऑफ इंग्लैंड और लंदन जो है उसको इन्होंने टियर 4 में डाल दिया है। तो काफी सिचुएशन जो है वो काफी खराब है कोविड को लेके। पिछले 24 घंटे में कई सारी यूरोपियन कंट्रीज हैं जिन्होंने यूके से इनकमिंग फ्लाइट्स रोक दी हैं, और अभी आउटगोइंग फ्लाइट्स भी रोक देंगे। ना कि सिर्फ इनकमिंग फ्लाइट्स, बल्कि जो फ्रेट आपका जा रहा था बाय लॉरीज एंड बाय ट्रेन, उसको भी रोक दिया कि गुड्स के अंदर कहीं कोविड तो नहीं आ रहा। अच्छा, तो ये जो स्ट्रेन, अभी जो नया स्ट्रेन देखा जा रहा है यूनाइटेड किंगडम में, ये किसी और भी कंट्री में है क्या? मतलब यूनाइटेड स्टेट्स या चाइना में कुछ ऐसा है? नहीं, या ओरिजिनेट हुआ है यूनाइटेड किंगडम में और साउथ अफ्रीका में, ये 2 कंट्रीज में आ चुका है। और यूनाइटेड किंगडम में भी इंग्लैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड में स्पेसिफिकली है। स्कॉटलैंड में कह रहे हैं शायद चला है, वो आज शाम तक उसकी कंफर्मेशन आ जाएगी। पर ये भी है कि हो सकता है फ्रांस और जर्मनी में भी ऑलरेडी चला गया। क्या इसमें रेट ऑफ इन्फेक्शन फास्टर है इसमें क्या? 70%, हाँ जी, 70% मोर कंटेजियस है ये प्रीवियस स्ट्रेन। ओके। हाँ जी, ऑलराइट परवेज साहब,
one brief tip from you. देखा आपने ताहा साहब ने क्या मैसेज किया? कोरोना का जो बुरा हाल है वहाँ यूनाइटेड किंगडम में, ये कह रहे हैं नया स्ट्रेन आ गया है, नया स्ट्रेन आ गया है। कोई भी नया स्ट्रेन आ जाए, बेसिक बात है कि आप बताइए कि अगर आप ग्लोबली देखिए, व्हाई द कंट्रीज व्हिच आर हाई मास्क हाई मास्क वेयरिंग कंट्रीज वर्सेस लो मास्क वेयरिंग कंट्रीज, एज पर द रिसर्च ऑफ द जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी, देखेंगे जो हाई मास्क वेयरिंग कंट्रीज हैं विज़ लो मास्क वेयरिंग कंट्रीज में ब्राजील, यूके, नंबर ऑफ यूरोपियन, बट उसी यूरोप में कंट्रीज हैं जैसे चेक रिपब्लिक है, उनके यहाँ एक मूवमेंट हुआ कि यू प्रोटेक्ट मी आई प्रोटेक्ट यू, घर घर में मास्क बनने लगा। आज वियतनाम में डेथ क्यों नहीं हुई? आज हांगकांग ने, ताइवान ने अपने को कंट्रोल कैसे किया? इजराइल ने। तो अभी जब तक कि वैक्सीन नहीं आ जाती है, परमानेंट सोल्यूशन नहीं आता है, तो ये जरूरी है कि हम लोग एक बेसिक जो एसेंशियल्स जो गाइडलाइंस है WHO की, आप 100% जो प्रिकॉशंस है लाइक मास्क वेयरिंग की, you put everybody, if you are wearing a mask and social distancing and washing the hands, why washing the hand? Because there is again a research of John Hopkins University कि इंसान जाने और अनजाने में every person 92 times a day अपने हाथ को अपने चेहरे पे ले जाता है, जो बहुत डेंजरस है। इसीलिए हम लोग को अपने हाथों को क्लीन करना, बेसिक हाइजीन को हम मेंटेन करें जब तक कि वैक्सीन नहीं आती है, और सोशल डिस्टेंसिंग, कंटेक्ट ट्रेसिंग, और ये जो खासतौर से वेयरिंग ए मास्क। आप देखा होगा आपने ब्राजील के प्रेसिडेंट, ही वाज नॉट एग्रीइंग फॉर द मास्क, इवन ट्रम्प वाज नॉट एग्रीइंग। सो ब्राजील का जो प्रेसिडेंट है वो खुद जब विक्टिम हुए तो फिर उन्होंने इंस्टीट्यूट किया। तो बहुत से इनिशियल स्टेजेस पे जो यूरोप में इतनी जानी गई है, उसमें यही था कि डिस्पाइट द फैक्ट दैट दे हैड अ वेरी गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, तो उनकी जो एजिंग पॉपुलेशन है उस पर बहुत इफेक्ट हुआ। और हम जो ये जरूरी है कि जब तक वैक्सीन नहीं आती है, हम लोग एक अपना रूटीन बना लें। जैसे स्पेनिश फ्लू आपने देखा होगा 1918 से 20 तक था, उसमें भी सेकंड वेव में ज्यादा लोग मारे गए, तो कुड बी वेरी डेंजरस। सो जरूरी है कि हम लोग जो बेसिक, जब तक वैक्सीन नहीं आती है, बेसिक हाइजीन है। अभी आप देख रहे हैं कि बहुत सी जगह मास्क पहनना लोगों ने छोड़ दिया और सोशल डिस्टेंसिंग छोड़ दिया। तो इफ यू फॉलो दिस, यू कैन प्रोटेक्ट योरसेल्फ, right, whatever is the contagious the virus is. All right. Okay, thank you so much, Taha Saab, for being with us. Thank you, Parvez bhai, thank you so much for being in this platform. Very soon we will again be in touch and discuss some more new issues. Thank you so much. Thank you.